मतलब मैं मेंशन करूँ या नहीं कि हाँ मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 3 साल वो यूपीएससी की प्रिपरेशन की? खुद पूछ लेते हैं आपके, उनके पास अच्छा, मार्कशीट होती है ना, तो पूछेंगे आपने 4 साल क्या किया? अच्छा, हुँ, ठीक है। कुछ जॉब किया वो हाँ, तो आई थिंक पूछ अनुभव लेंगे ने तो तो आप पहले बता आपने देंगे। एमएससी भी कर रखा था ना? हाँ, मैंने मैथ्स में किया था, हाँ, मैथ्स में तो करके मेरे फिर से वो पूछा जॉइन था। किया, सो वो है, कोई दिक्कत नहीं। हुँ, हाँ भैया, वो डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करने होंगे? वो आपको बता देंगे, उसमें लिखा होगा मार्कशीट वगैरह चाहिए होती हैं सारी, 10th क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक की जितनी है, और तो आधार वो वहाँ कार्ड। कैंपस पे जाने के बाद ही मतलब वो सब कुछ सबमिट वगैरह करना होता है? हाँ, ऑफ़लाइन वो मेल में लिखा होगा, और जो लिस्ट आई ओके, होगी इंटरव्यू लिस्ट, उसमें भी लिखा होगा क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो 6 सेमेस्टर की ओके सर। मार्कशीट, हुँ, क्या पूछ रहे हो भाई? इस दोबारा पूछो। हाँ, लाइक मतलब वो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट है, तो 6 की हाँ, 6। हाँ, सारी मार्कशीट चाहिए होती है। अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ, ओरिजिनल लेके जाओ साथ में, है ना? ये है। हुँ, हाँ, हाँ, और फ़ोटोकॉपी भी वहाँ सबमिट कराएँगे। हाँ। ओके ओके। हुँ, ठीक है। ओके, आई थिंक लास्ट कैंडिडेट है, इसको कंप्लीट करते हैं। सचिन, सो ओके, स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन, इफ पॉसिबल यू कैन ऑन योर कैमरा, अगर पॉसिबल हो तो। कैमरा तो नहीं सर, मैं ऐसे ही करता हूँ ठीक थोड़ा। है, ओके ओके, डन। सो यू स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन। My name is Sachin Kumar. I am from Bulandshahr, Uttar Pradesh. I completed my class 10th from Uttar Pradesh, my hometown, and my class 12th from Delhi. Class 10th from Bulandshahr, Uttar Pradesh, and class 12th from Delhi. Currently, I am pursuing a bachelor BSc honors in mathematics from the University of Delhi. And विच कॉलेज? Delhi Rajdhani College. राजधानी कॉलेज, ओके। सो so you have background in mathematics, okay? Yes, a mathematics So honors. how did you know about this exam, ISI MSQ MBA? Uh, the, I am I'm interested in pure mathematics and morely in pure applied mathematics. So I'm idea about the exam through the YouTube, and I am watching your YouTube channel and YouTube videos regarding the examinations. So did you apply for JAM also, JAM Mathematics? Yes, sir. I applied for that. Okay. So okay, since you have background in mathematics, I think अनुभव कुछ पूछेंगे, पूछिए फिर मैं पूछता हूँ। हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ। हम्म। ये चैट में क्वेश्चन डाले, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Yes, sir. Okay. See the chat and try. You have to Hmm. you have to find number of solutions in this question. Okay. X square. Minus 5x plus 6. ये होल पावर है उसका। The whole power. Okay, sir. Okay. आप कैसे सॉल्व कर रहे हो इसे? कैन यू So, एक्सप्लेन हाउ आर यू अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम? sir, I am trying uh, using a log both side. In the power quadratic power quadratic is equal to 1, so we can try use the logarithm, and also another method we can use equal the basis the x square minus 5x plus 6 to raise to the power 0. So x square minus 5 3x plus 2 is equal to 0. This is the another method. X square minus 5x plus 6 is equal to the whole to the power x square minus 3x plus 2 is equal to x square minus 5x plus 6 whole to the power 0.
So the both side base are equal, हम्म, so they can compare the power हम्म, is equal to 0. So sir, now solution is 1 comma 2 and 1 1 comma comma 2 2 okay 1 comma 2 okay I and okay okay sir. Eh, And sir now is we can will you use consider 2 as solution? to to square सर 2 तो सर नहीं होगा आई थिंक 2 तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा आई थिंक Hmm, 2 इज मेक अ इंडिटरमिनेट फॉर्म okay ऐसा ना 0 पावर so 0 होगा hmm, 2 is not a solution sir I think 1 is solution okay so have you studied linear algebra? yes sir So so define diagonalizability. diagonality is if a matrix is any square matrix and there exists a diagonal matrix D and they also be invertible matrix P. So we can say that A is equal to P inverse DP, or we can say that A is similar to D. So those are matrices satisfy the definition of A is equal to P inverse DP. Those matrices are diagonal matrices. Yeah, or we can say that do these matrices convert into diagonal matrix. Those all matrices are diagonal matrices. Okay. Uh, is null matrix is diagonalizable? Null matrix Uh, are null matrix. Yes, sir. Null matrix also. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I think, sir. Yes, yes, sir. okay. Because yes, sir. Oh, सर आप ओके सो आप कॉची सीक्वेंस जानते हैं? व्हाट इज द कॉची सीक्वेंस? yes, sir. हाँ, पढ़ा था yes, sir. क्या है कॉची सीक्वेंस? So, oil sequence talking about the convergent of the theorem for epsilon greater than for epsilon any arbitrary greater than 0 there exists a positive integer n such that a n minus a m less than epsilon for all n greater than equal to n. ग्रेटर इक्वल टू एम, एन ग्रेटर देन एम Yes, sir. जरूरी है. Yes, sir. For कोई सीक्वेंस जरूरी होगा क्योंकि सर उसमें लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए बताता है फॉर कन्वर्जेंट. तो n ग्रेटर देन n के बाद लार्ज वैल्यू मिलेंगी जिसके कारण हमें ये सेटिस्फाई करेगा फॉर लार्ज वैल्यू. So what is the relation between convergence and Cauchy sequence? Convergent sequence and Cauchy sequence. सर दोबारा बोलना समझ नहीं आया. Convergent sequence. Do you know convergent sequence? So what is the Yes, definition sir. when we say a sequence is convergent? So sequence. So we can say is a sequence is convergent if there exists a limit point. If the sequence gives a unique limit point, it has a unique limit. So we can say that it is a sequence. This is convergent sequence. What is the limit point then? Limit point, sir. Limit point. I am telling the unique point, unique ACP. Unique equilateral point. The unique point, equilateral point is become limit point. Okay. What is this Archimedean point? What you are saying? Accumulation point, sir. Accumulation point something we can What is say. this accumulation point then? Accumulation point, sir. It is the Mathematically कैसे define करोगे? सर एक सेकंड सर बता रहा हूँ. क्या सर मैं भी थोड़ा भूल रहा हूँ दिमाग में नया निकल चुका है तो. Okay. सर आई थिंक एसीपी ऐसा होता है सर. मैं एग्जांपल दे सकता हूँ. जैसे कि हमारे पास एक लिमिट हमारी सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल टू 1/n. तो इसका जो एसीपी होगा 0 होगा. ये होता है सर. एसीपी और लिमिट पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस होता है मतलब थोड़ा सा.
सो आपको देखना होगा लिमिट पॉइंट, आई थिंक वो होता है पॉइंट जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, हाँ यस वही सर, नेवर नंबर। उससे हो जाएगा। एनीवे, सो कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होगा, ये सही है गलत है? यस यस सर, हाँ ये है। बट ये हमेशा सही है या सिर्फ रियल सीक्वेंस में सही है? नहीं सर, मैंने रियल पढ़ा है तो रियल में सही है सर, मैं और भी नहीं कह सकता। दिस विल वर्क इन ओनली रियल सीक्वेंसेस। रियल है सर। सो व्हाट इज मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम? Sir, if a sequence is monotonic, if a sequence is monotonic, matlab means that increasing sequence and bounded sequence. Increase and bounded sequence is convergent. एवरी If a sequence is increasing or bounded, मतलब मोनोटोनिक so ओके, हाँ monotonic, so we can say that sequence is convergent. हाँ We डिक्रीज don't talk about if a sequence is monotonic तो convergent होगी, जरूर नहीं है। तो monotonic plus bounded तो फिर we can talk about convergent. मतलब डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड है तब भी कन्वर्जेंट होगी, है ना? हाँ हाँ ओके, सो स्टैटिस्टिक्स का कुछ आइडिया है इन स्टैटिस्टिक्स फील्ड, प्रोबेबिलिटी फील्ड? सर, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी सर सिलेबस में नहीं था ना, थोड़ा पढ़ा नहीं था, मैं तो थोड़ा देख लूंगा अगर आप बताओ तो थोड़ा एंड में। हाँ, यू सी व्हाट इज द बेस थ्योरम, डू यू नो? यस सर, यस सर, यस सर। नहीं सर, थोड़ा मैं पहले पढ़ा था तो दिमाग से निकल चुका है सर, अभी थोड़ा तो देख लूंगा सर मैं। रिवाइज दिस पार्ट जो सिलेबस में है ना? ओके सर। ओके, आई थिंक सो, ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल, हाँ एवरीवन, या ओके सर। भैया डाउट था मेरा सर थोड़ा, मैं सर भैया और क्या प्रिपेयर करना चाहिए थोड़ा बता दीजिए, इसमें मैथ्स से हूँ सर थोड़ा। मैथ्स का पढ़ लेना, रियल और लीनियर पढ़ लेना अच्छे से, इसमें ज़्यादा एडवांस मत जाना। रियल में यस सर। बेसिक टेस्ट होते हैं, रेशियो टेस्ट या जो तो भैया इसमें थोड़ा डेरिवेशन पूछते हैं क्या, जैसे कि मतलब आगे जाके। स्टैटिस्टिक्स के पूछ लेते हैं, मैथ्स के भी पूछ लेते हैं, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो थोड़े से। ओके 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 ये मेरे से पूछा था, ये सेम क्वेश्चन इस टाइप का ही था, सिमिलर सा। ओके 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 और सर। स्टैटिस्टिक्स का तो पक्का पढ़ लेना, तीन डिस्ट्रीब्यूशन से वो अच्छे से कर लेना, बायनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल। दिस इज आल्सो तो- सिलेबस, सिलेबस में इसका नाम है। अच्छा बायनोमियल, ओके सर। मेरे को डाउट था कि जैसे कि ग्रुप थ्योरी मेरे पास है तो ग्रुप थ्योरी को भी थोड़ा रिवाइज कर। वहाँ पर एमएथ वाले प्रोफेसर्स नहीं होते, ओके, क्योंकि वो एमएथ का इंटरव्यू लेने जाते हैं। तो मेनली वो रियल और लीनियर का मैं ज्यादा थोड़ा। हाँ, रियल लीनियर, क्योंकि लीनियर की एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स में आती है, रियल की तो हर जगह ही आती है, पर यहाँ मैंने पर देखा था ग्रुप थ्योरी का नहीं है। मैंने देखा था वो सर भैया बता रहे थे इंटरव्यू में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी पूछते हैं, ग्राफ पूछते हैं, उसमें बता सिग्निफिकेंस पूछते हैं। ग्राफ पूछ लेते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ के ग्राफ होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ हो गया, इसमें अगर स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के तो स्क्यूनेस कर्टोसिस भी पूछ लेते हैं। और मैथमेटिक्स में भी ग्राफ पूछ सकते हैं आपसे, कोई कर्व दे देंगे, मतलब जिसकी इक्वेशन थोड़ी फेमस है, कार्डियोड वगैरह, उससे आप पूछ सकते हैं। ओके ओके। मतलब जो आप बोलोगे उसके बेसिस पे पूछते हैं वो, अगर आप अपनी स्टैंड बता रहे हो रियल लीनियर तो वो नहीं पूछेंगे ज़्यादा। जैसे मेरी मोडली प्योर में अप्लाइड है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे पसंद है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे पसंद है, तो थोड़ा अप्लाइड ज्यादा पसंद है मेरे को थोड़ा। हाँ, तो वहाँ पर हीट इक्वेशन वगैरह पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा, हीट ओके इक्वेशन, ओके ओके। हीट और कौन सी लाप्लास होती है, हाँ लैप्लास, हीट, ये सब इनका फिजिकल मतलब ही पूछ सकते हैं, फिजिकल एप्लीकेशन। हाँ, सिग्निफिकेंस क्या है। और मतलब प्रूफ भी करना होगा, मतलब लीनियर अलजेब्रा में जो भी प्रूफ है, जैसे कि नहीं, वो इतने डीप में नहीं पूछेंगे, जैसे मैंने रैंक मैट्रिक्स नलिटी ऑफ, थ्योरम है तो उसका प्रूफ करो कुछ नहीं ये ऐसा। सब नहीं पूछेंगे, मैं एमएथ के प्रोफेसर नहीं है, वो नहीं पूछेंगे इतना। तो वो पर मतलब मैं हाँ, डेफिनेशंस अच्छे से कर लूँ तो वो चलेगा। हाँ उतना चलेगा। हाँ, थोड़ा सा अप्रोच अगर स्टार्ट भी करते हो तो चलता है, उतना वो नहीं पूछते, क्योंकि वो प्रोफेसर ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स के ही होते हैं, उन्हें मैथ्स में टच हट जाता है उनका, उतना डीप। पर एप्लीकेशंस तो पता होते हैं, जैसे मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा, वो आपको कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे देंगे, जैसे फ्रॉम R2 से R2 t of x equal to 2x plus 3y, इसका मैट्रिक्स बनाओ, लाइक दैट। अच्छा, एक्चुअली ऐसे
और रियल एनालिसिस में मतलब वही उसके डेफिनेशंस कर लो और कुछ क्वेश्चंस कर लो हाँ, तो कुछ क्वेश्चन चलेगा? प्रैक्टिस कर लो। हाँ, बेसिक से बस सीक्वेंस दे सकते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं है, है कि ऐसा। नहीं? हाँ, हाँ, इसका लिमिट पॉइंट बताओ, या सीरीज सम दे देंगे, जैसे एंट्रेंस में आता है उस टाइप की। अच्छा। उससे वो डिफिकल्टी। मतलब प्रूफ करने तो नहीं बोलेंगे ना कि प्री टेस्ट को प्रूफ करो अरे ऐसे? नहीं, ये नहीं पूछते। प्रूफ तो क्योंकि मेरा नहीं, थोड़ा मतलब छूट भी गया है ना, थोड़ा गैप आ गया है तो नहीं काफ़ी पूछते। कम टाइम में मैंने प्रिपेयर किया है तो सब नहीं कर पाई हूँ। ये है। हाँ, इतना नहीं पूछते, बेसिक्स ही पूछते हैं काफी इंटरव्यू के क्वेश्चन। एवरेज कितना टाइम होता है इंटरव्यू का, मतलब 30-40 मतलब? नहीं, 20 मिनट के आसपास होगा मैक्सिमम, क्योंकि आप लिस्ट देख सकते हो, एक दिन में 12-14 बच्चों का ले रहे हैं, तो उससे हाँ। ज़्यादा कैसे टाइम देंगे। ओके सर। हम्म, I have one doubt. हम्म, This is not for the interview, but of the interview. If fees is taken out from CMI and if we give the fees back, हम्म। based on the placement, whether CMI data science is better or ISI MSK only is better. See, if you consider the number of opportunities, here we have only 20 seats, or only one course is interested in placement at Bangalore. Other courses are aligned with research, BMath, MMath, guys. Yes, yes. And one new course is started, BSDS, but they have not provided their placement data. They don't have any placement data. So company do visit and placement is good, but if money is not an issue, then go for CMI. If you have no issue with the fees, then go for CMI. I think, है ना, Anubhav was selected in both institute. He was selected in CMI, ISI both, so he choose ISI. Okay. Okay. If you do not have any financial issue, and if you are comfortable with spending Okay. No, 10 lakh fees, actually, yeah, I think I might get a scholarship because I'm from EWS background, so I'm thinking uh, which if one you is get better. scholarship, then that would be better. In all terms, that curriculum is better. Faculty is their faculty also works with industries in the field of data science and machine learning also, and they have industrial visits as well. And batch size is also more. They have around every year 45 students enroll in that course. Yeah, I think this time they shortlisted around 65. They shortlist 65, but like I left the institute. Yeah, yeah, Similarly, yes. many students leave Okay. this. So around 45 enrolled. Okay. You will get diversity there, and their coursework is better compared to us. Ours is statistical, but they have computer science and coding courses as well. Yes, yes. I saw the course actually. They had one Python and data structures Mm, and all these They courses have are also. visualization course, machine learning course, Yes. and their electives are also industry aligned. So Yeah. if you don't have any issue, then my opinion is go for that course. CMI is Okay. better. Yeah. Well, thank you. Mm, Okay, I think done everyone. So yeah, Okay. thank you Anubhav for your giving your time and the guidance to these students. Since you are already qualified, so they Mm, will get the right guidance from you. So thank you and thank you everyone, and especially thank you Great, to sir. Anubhav for your time. Great, sir. Thank you.